سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ایکو ذرا تھوڑا کٹ کر دو، آواز سمجھ آئے۔ ایک گل سن لو، پھر تسی سارے دروشی پڑھو گے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر القول البدیع کے اندر ایک گل بیان کی تھی۔ فرمانے نے کہ قیامت کا دن ہوئے گا، ایک بندے دے اعمال دا وزن کیتا جائے گا اور اندیاں نیکیاں تھوڑیاں تے گناہ چوکھے ہوں گے، تے فرشتے انہوں نے آرڈر ہو جائے گا کہ فرشتے انہوں کھچ کے جہنم میں لے جاؤ۔ انہوں فرشتے کھچ کے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، اتھے کل کائنات دے کل انسانیت دے باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوں گے۔ آپ دیکھ کے تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عرض کریں گے، یا رسول اللہ تو اڈے امتی نے دیکھو کدھر لے جایا جا رہا ہے۔ تے میرے آقا دیکھن گے، قربان جاؤ کڈا خوش قسمت امتی ہوئے گا جنہیں وال نبیاں دے سردار ویکھن گے۔ شاعر نے کہا پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، جنہیں تے حضور دی نگاہ پہ گئی ان کا کام کیوں نہیں بننا۔ بس حضور دیکھن گے تے فرشتیاں نو فرمان گے، اے فرشتے میرے امتی نو کدھر لے جا رہے جے؟ فرشتے عرضگزار ہون گے، اسی مامور من اللہ واں، اسی اللہ دے حکم دے پابند ہاں، سانو رب دا جو حکم ہوندا ہے اسی وہ کرنے ہاں۔ تے انہیں میرے آقا مولا عرش وال دیکھن گے اور دیکھ کے اللہ دی بارگاہ عرض کرن گے، مالک تو تے میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ محبوب میں تینوں مخلوق دے سامنے رنجیدہ نہیں ہون دیاں گا، پریشان نہیں ہون دیاں گا۔ اے فرشتے کہندے نے اسی مامور من اللہ ہاں، اینی دیر ہوئے گی کہ عرش تو آواز آئے گی، اے فرشتیوں میرے محبوب دی دعوے داری کرو، میرے محبوب دی اتباع کرو، میرے محبوب دی فرما برداری کرو۔ ہن فرشتیاں نو میرے آقا مولا فرمان گے، اے فرشتوں میرے امتی دے عملہ دا وزن ذرا دوبارہ کرو۔ ہن فرشتے نہیں کہیں گے عملہ دا وزن تے پہلے کر چکے ہیں، ہن کوئی بات تے نہیں گیا، جو آرڈر ہوئے گا ان دے تے عمل کرن گے، عمال دا وزن ہوئے گا۔ ہن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میزان تے تشریف فرمانے تے گولڑے دے تاجدار دا پتر بولدا ہے، شاہ رشید الدین گولڑ بھی کہندے نے، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے۔ جی اگر کوئی سمجھ آئی تو محبت نہ کہہ لو سبحان اللہ۔ تھوڑی سستی نو ویکھ کے ہو کے پڑھن نو جی کردا ہے، ڈوب کے ترن نو جی کردا ہے، جب دا سنیا قبر سرکار میں آنا ہے ان پہ مرن نو جی کردا ہے۔ اور یاد رکھو اج بھی لوگ حضور دے ذکر واسطے دلیلاں لبن دے نے، تے میں کہا اے بول بول نو ویکھے تسی، اے کوئی انہیں دلیل لبی ہوئے جتھے کھول ہوئے اتھے بول بول نظر آندی، جتھے شمع ہوئے اتھے پروانہ نظر آندے، تے جتھے ذکر رسول ہوئے اتھے آپ نظر آندے۔ آج کل کبھی دلیل دی ضرورت نہیں پئی، اندے واسطے اتنا کافی ہے کہ اندے لبا تے اندے نبی دا نام آ جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے غلاموں توجہ فرماؤ، حضور فرشتیاں نو فرمان گے کہ میرے امتی دے عملہ دا وزن ذرا دوبارہ کرو۔ عملہ دا وزن ہوئے گا، نیکیاں کٹ برائیاں زیادہ۔ انہیں تے حضور ایک کاغذ دا ٹکڑا کٹ کے نیکیاں والے پلڑے سے رکھیں گے، نیکیاں والا پلڑا پارا ہو جائے گا۔ ہن حکم ہوئے گا فرشتے انہوں جنت دے جاؤ۔ ہن او جناب حضور دا امتی ایتھے تے ولی دی طاقت تے بڑی ہے، یہ تے عام حضور دا امتی ہے۔ فرشتے کہنے جنت تے جا، وہ کہنے میں کام بن گیا، گناہگار ضرور ہاں لیکن اتنا بے قدرہ نہیں، میں دو سوالوں دی وضاحت چاہنا، ٹھہرو والے جنت تے نہیں جانا، میں دو سوالوں دی وضاحت چاہنا۔ حضور دی بارگاہ عرض کرے گا جناب میں ایک وضاحت چاہنا کہ اس مشکل وقت میری حاجت روائی فرمائی، مشکل کشائی فرمائی،
जनाब तुसी दसो है तो कौन हो? तो उस वक्त मेरे नबी फरमाएंगे, ऐ मेरे गुलाम मैं तेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर अर्ज करेगा या रसूलल्लाह एक सवाल की वजाहत हो गई, एक सवाल की वजाहत और चाहना, ए जिहड़ा कागज का तुसी टुकड़ा कढ़िया सी, इतना कीमती कागज केड़ा सी, यह भी मैनू वजाहत कर दिओ। तो उस वक्त मेरे हजूर फरमाएंगे, ऐ मेरे गुलाम ए तेरा ओ दरूदो सलाम है जिहड़ा तू मुहब्बत नाल, चाहत नाल, उल्फत नाल, अकीदत नाल, प्यार नाल, ज़ौक़ नाल, शौक नाल मेरी ज़ात ते अलहदगी च बैठे खुशबू खुशबू नाल दरूदो सलाम भेजदा है। मैं कागज ते नोट कर लिया सी, तेरे ते मुश्किल बने, इहदी वजह तो मैं तेरी मुश्किल कुशाई कर दिया। सुभान अल्लाह। मोहब्बत नाल बरकत वास्ते एक दफा सारे दरूद सलाम पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। दोस्तों, कुछ लोग आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान और अजमत दे मुनकर ने, और कुछ लोग सरकार दे सहाबा दी शान दे मुनकर ने, कुछ लोग अजमत अहले बैत दे मुनकर ने, कुछ लोग शान औलिया दे मुनकर ने। लेकिन अल्लाह दा लख दफा शुक्र करया करो, असी हजूर सरकार दी अजमत और शान दे मोतरफ और कायल ही नहीं, बल्कि असी ते हजूर दी शाना बयान करने। और याद रखना, रूए जमीन ते जितने दरख्त ने, बुजुर्गां ने दीन ने लिखा, अगर उनकी कलमा काट लिया जान और जितने पानी ने समुद्रा के उन्होंने स्याही बना ली जाए, स्याही खत्म हो जाएगी, कलमा टूट जाएगा, लेकिन हजूर दी शान का एक बाप भी पूरा नहीं होएगा। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर असी तज़किरे क्यों करने आ? जिन्ना भी जिक्र हजूर दा कीता जाए, सरकार दे जिक्र दा कमा हक हो, हक अदा नहीं हुंदा, तो फिर सवाल पैदा होता है जिक्र करने का फायदा की है? जिन्हें जिन्ना जिक्र हजूर दा कीता है उन्ना खुद बुलंद हो। और फिर क्यों जिक्र मुस्तफा करने आ? तुहानू पता है कि एक बुढ़ी माई और जनाब सूत्र दी अट्टी लैके जा रही, तो किसी ने पूछा माई किधर जा रही है? कहनी मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम नू खरीदन जा रही। यूसुफ अलैहिस्सलाम नू खरीदन जा रही है। माई नू कहन लगा एक बंदा, माई चली हुई है, महबूब अट्टियां दे मुल थोड़ा ही विकते ने, तो वह कहती पता मैनू ही कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम नू नहीं खरीद सकती, इन्नी मेरे च पावर ताकत नहीं। तो फिर माई अट्टी किधर ले जा रही है? तो कहन लगे, माई कहन लगी कि पता मैनू भी है खरीद नहीं सकती, लेकिन जो दिल होवे कयामत का, तेरा पूछे मेरे यूसुफ के खरीदारां च कौन कौन सी, तो कहती उस लिस्ट मेरा भी नाम बोले, ना मेरा भी आवे उथे, ते असी सरकार दा जिक्र कबा हकून नहीं कर सकते, लेकिन क़यामत के दिन जो पूछा जाए मेरे महबूब का जिक्र करने वाले कौन कौन ने, ते तमन्ना यही है कि उथे साडा भी नाम आए। इस वास्ते हजूर का जिक्र खैर किया जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने सरकार की सूरत रब ने इन्नी सोहनी बनाई, मुनकर भी वेखदा है ते गर्विदा होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना हो जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत एक छोटे जे बच्चे ने कर ली, यहूदी का बच्चा, बुखारी शरीफ में रवायत मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लिया, हुण जदों तक हजूर को नहीं वेखदा उन्हें चैन नहीं आता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों तक नहीं वेखदा उन्हें सुकून नहीं आता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च रोज आता है और आके ज़ियारत करता है, सरकार दे वुजू का पानी भरदा है, सरकार को वुजू करवांदा है और नालैने सीधे करके रखता है, चला जाता है। एंड कुछ अरसा गुजरता रहा, फिर कई दिन लंघ गए, यहूदी का बच्चा नहीं आया। तो मेरे आका ने पूछा सहाबा करो, सहाबा यहूदी का बच्चा कई दिन तो आ नहीं रहा, की वजह है? सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, और बिस्तरे मरद ते लेटिया है, ते उनका वालिद दवाइयां इलाज करा करा के जनाब थक चुके हैं और आज
जा चुके हैं, हकीमत तबीबा ने लाइलाज करार दे दिता है। और उधरों जनाब अपने घर के अंदर लेके आए और उथे वो अपने बेटे को पूछना है, बेटा तेरी कोई आखिरी तमन्ना है तो दस। बेटा कहता हाँ मेरी आखिरी तमन्ना है। तो बाप कहता बेटा तेरी की तमन्ना है? और कहता मैनू मेरे नाल पहले वादा करो कि मेरी तमन्ना पूरी करोगे। ते बाप कहता बेटा ये वक्त वादे लैन का नहीं। ते बेटा कहता नहीं मैं पहले वादा लागा फिर अपनी तमन्ना दसागा। ते वो बाप वादा कर लेंदा है। जो वादा करदा है ते बेटा बोलदा है कि मैनू मुसलमानों के नबी नाल मुहब्बत हो गई। मुहब्बत इश्क च बदल चुकी है। जदों तक उन्होंने वेखना लवा मैनू चैन नहीं आता, मैनू सुकून नहीं आता। मेरी आखिरी तमन्ना यह मरण तो पहला एक दफा सोने का चेहरा वेख, फिर भावे मैनू मौत आ जाए। कोई गम नहीं, कोई खतरा नहीं। हुण आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर ओ वालिद आंदा है, आके अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मेरा एक बेटा है, उन्होंने तुहाडे नाल प्यार हो गया है, मुहब्बत हो गई, मुहब्बत इश्क बदल चुकी है। आलम यह है जो तक तुहानू वेख ना लवे सुकून नहीं आता। ओ बिस्तरे मरग ते लेटे है, आखिरी तमन्ना यह है मरण तो पहले एक दफा तुहानू वेख लवा। सरकार ने फरमाया तू चल असीं आने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा नू नाल लिया, हजूर तशरीफ लै गए और उन्हें जो हजूर नू वेख्या जांदी हुई जान जिस्म विच वापस आ गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटे कलमा पढ़ ले। वो अपने बाप दे वल वेखन लगा और वो बाप उसका बाप कहंदा जो तेनू महबूब खुद फरमा रहे ने ते मेरे अल की वेखना, कलमा पढ़। उन्हें कलमा पढ़िया, सरकार बाहर तशरीफ ले आए। थोड़ी देर तो बाद उनकी जान कफसे अंसरी तो जुदा हो गई, रूह उसके जिस्म तो जुदा हो गई और उसकी जान जाने आफरी दे हवाले हो गई। सरकार ने अल्लाह की हमद बयान की थी, फरमाया हमद उस खुदा दी जिसने मेरे सबब नाल इनू जहन्नम दी अग तो बचा लिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों यहूदी कहन लगा या रसूल अल्लाह हुण मेरा नहीं है तुहाडा है, तुहाडा कलमा पढ़ चुका है, इनका जनाजा हुण मेरे घर तो नहीं तुहाडे आस्थाने तो उठेगा। वो कुड्डा खुशकिस्मत है जिंदा जनाजा हजूर दे दवारे तो उठेगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरे दौलत ते उस बच्चे नूं लियाया गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरे दौलत ते उस नूं गुसल दिता गया, कफन दिता गया, जनाजा तैयार किया गया। जनाजा लैके मदीने दी गलियां चो जनाब जा रहे ने ते ख्वाजा नसीरुद्दीन गोलवी बोल उठे, कहते ने आशिक का जनाजा है, जरा झूम के निकले महबूब की गलियों से, जरा घूम के निकले। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आशिक सादिक नूं ले जाया जा रहा है। ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब उंगलियां ते वजन पाया है, अड्डी जमीन ते नहीं ला रहा है। किसी ने पूछा हजूर एक ही वजह है कि अड्डियां ते जोर क्यों नहीं दे रहा है? फरमाया इस बच्चे दे जनाजे च अल्लाह दी रहमत इन्ने फरिश्ते आए ने कि सीधा पैर रखन दी जगह ही कोई। पता चलिया कि मुहब्बत इंसान नूं उत्थे पहुंचा देंदी जिथों तक अमल नहीं पहुंचाता। और सरकार दे सहाबा ने हजूर ते जान निसारी की थी और उन्हां दी शान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद बुरहान रशीद ऐन बयान की थी। फरमाया अस्साबिकून अल अव्वलूना, फरमाया सब तो पहले हिजरत करके जान वाले मुहाजिरीन वल अंसार, और वो अंसार जेड़े के मदद गुजार हुए। और फरमाया वल्लदीन तबाऊहुम बेइहसान, फरमाया नेकी नाल उन्हां दी जेड़े पैरवी करन वाले ने, फरमाया अल्लाह ने उन्हां नूं इनाम दिता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, फरमाया अल्लाह उन्हां तो राजी है ते ओ रब तो राजी। अल्लाह उन्हां तो राजी और रब तो राजी। हुण ये अल्लाह की रजा दा कितना बड़ा इनाम है। हर बंदा चाहता है कि रब मेरे ते राजी हो जाए, लेकिन सहाबा दी शान दे क्या कहने, रब उन्हां तो राजी और रब तो राजी। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना सारा माल सरकार दी बारगाह ला के पेश कर दिता। रिवायत मुख्तसर अर्ज कर रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अबक़ैत लि अहलिक, ए अबू बकर घर वाले ने की छाड़ा है? अर्ज की अब कई तू लहुमुल्लाहु व रसूल, अर्ज की सोने घर वाले ने अल्लाह ते उनका रसूल छाड़ा है।
तवज्जो है, अगर समझना चाहो तो सवाल पैदा होता है रसूले खुदा दे ते सामने खड़े ने, पर यह कहना कि घर वाले नहीं अल्लाह तो उनका रसूल छड्ड आया। रसूले खुदा ने अगर नहीं पूछया, सरकार अनवारो तजल्लियात रब दे मगन सन, तो सहाबा ही एतराज कर देंगे, ऐ सिद्दीक रसूले खुदा ते सामने खड़े हो और ये कह रहे हो घर में अल्लाह और उसका रसूल छड्ड आया। पता चलिया ये किसी सहाबी का इतराज नहीं, अज बदबख्त का इतराज है। सहाबा का भी यही अकीदा सी जो अज साडा अकीदा है। साडा अकीदा की है कि यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वैसे तुसी उर्स ते आने वाले हो, बारिश पई है, बारिश नाल ठंड हुई है, लेकिन इश्क की गर्मी तो बड़ी होंदी है, ते तुहाडे इश्क तो भी कुर्बान मोहब्बत ना करो सुभान अल्लाह। अकीदे की गल आई और मेरे उस्ताद फरमांदे ने अज साडा अकीदा कोई घड़िया होया अकीदा नहीं, सहाबा कोलों पढ़िया होया अकीदा। सहाबा का भी यही अकीदा सी। अज तुसी देखो दीवारां भरियां होईयां ने लिख लिख के मेरे लिए अल्लाह काफी है, लेकिन याद रखो ये सहाबा का अकीदा नहीं सी। सहाबा का अकीदा की है अब कई तो लहुमुल्लाहु व रसूलु, फरमाया घर वाले ने अल्लाह ते उसका रसूल छड्डा। पता चलिया सहाबा का अकीदा नहीं, सहाबा का अकीदा है मेरे लिए अल्लाह ते उसका रसूल काफी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने सारा माल लिया के हजूर की बारगाह पेश कर दिता और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह जिबरील अमीन हाजिर हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम फरमांदा है आप दे झारे गार नो और फरमांदा है अपने यार नो पूछो सारा माल मेरी राज खर्च करके मेरे नाल राजी भी है कि नहीं। इस बात नो रब इकबाल कलंदर लाहौरी ने इस राज नो खोलिया। फरमाने ने खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा का। रब पूछ रहा है अपने यार को पूछो मेरे ते राजी है कि नहीं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अखा चो आंसू आ गए कि रब दी इतनी मेरे ते मेहरबानी। अर्ज की हाँ मैं अपने रब तो राजी हाँ, मैं अपने रब तो राजी हाँ, मैं अपने रब तो राजी हाँ। ये है रजा का मुजदा। फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, फरमाया अल्लाह उन्हें तो राजी और रब तो राजी। फरमाया वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा। फरमाया उन्हां वास्ते अल्लाह ने जन्नत तैयार की थी, उन्हां वास्ते अल्लाह ने जन्नत तैयार की थी। तैयार जन्नत होई हजूर दे गुलामां वास्ते और उत्थे पाक लोगों ने जाना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां लई जन्नत तैयार अल्लाह ने की थी। ए इनाम अल्लाह ने दिता। फरमाया उन्हां दे थल्ले नहरां जारी ने और नहरां भी कैसियां और नहरां दी गल आई ते आशिक मुस्तफा तो ही और नहरां दी गल समझिए। हजरत सिद्दीक अकबर सरकार नूं लैके जा रहे ने, गार दे अंदर जदों पहुंचे अर्ज की अन आतिशुन या रसूलल्लाह मैं प्यासा वां, मैनूं प्यास लगी है। फरमाया इज़हब इला सदरिल गार, ए अबू बकर गार दे सीने ते जाओ। हुण जनाब सिद्दीक अकबर पानी पीन वास्ते खड़े होन लगे ने। जिबरील अमीन नो अल्लाह हुक्म देंदा है, फरमाया ऐ जिब्राइल मेरे महबूब दा यार पानी पीन वास्ते उठ खड़ा होया है। इहदे वार दे दरमियान जान तो पहले तू जन्नत चों नहर खोद के लै, जन्नत चों नहर खोद के लै दा। हुण जिबरील अमीन अलैहिस्सलाम जन्नत चों नहर खोद के ले आए। पानी